10th, exercise 9.1, application of trigonometry. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. एक top vertical pole है, इन्हें मान लो AB. Okay, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ string ਇੱਦਾਂ tie ਕਰ ਦੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ. C ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਸ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 20 ਮੀਟਰ ਰੋਪ ਨੂੰ which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. vertical pole ਤੇ ground ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ. find the height of the pole. height of the pole ਕੱਢ ਦੋ. if the angle made by the rope and ground is 30 degree ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ. ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ. ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ. ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦੇ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸੀਕਨ ਥੀਟਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾਗਾ. ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC sin 30 degree is equal to perpendicular over hypotenuse. sin 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 1/2 perpendicular ਹੈਗਾਗਾ AB, hypotenuse ਕਿਆ ਹੈਗਾ AC. ਫਿਰ 1/2 AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ. AC ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB. AB अपनी जगह 2 नीचे चला जाएगा 10. सो AB कितना आ गया मेरे पास 10 मीटर. AB ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया. ਹੁਣ सैकेंड करते हैं. सैकेंड क्वेश्चन च क्या दिता वा थानू, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐदा थोड़ा प्रॉपर ट्री था ऐदा ब्रेक्स ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग. ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ. ਬੈਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਟਰੀ ਟੱਚਿਸ ਦ ਗਰਾਊਂਡ. ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੀ ਦਾ, ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਜਦ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਐਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਨੀਚੇ. ਓਕੇ, ਟੱਚਿਸ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ. The distance between the foot of tree to the point. Distance between a foot of the tree ga aega foot of the tree and the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. Height of tree ਕੱਢਣੀ ਗੀ ਤੁਸੀਂ. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ABC. Height of tree ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੱਢਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ BC, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ AB ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ. ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਇਹੀ ਹੋਣੀ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਟਰੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪੁੱਛੀ ਵੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ tan. ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC tan थीटा क्या ਹੁੰਦਾਗਾ परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 30 ਡਿਗਰੀ. ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ BC. ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ AC. tan 30 ਹੁੰਦਾਗਾ 1/√3. BC ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, AC ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 8. क्रॉस ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ. ਤਾਂ क्रॉस ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ 1 into 8 √3 into BC. BC अपनी जगह 8 1 8 नीचे चले गया √3. ओके, इनू ऐदी रहन दो. चलो रैशनलाइजेशन भी कर ही लेंगे क्योंकि नीचे रैशनल नंबर है. 8/√3, ये √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाना, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाना. 8 into √3 8√3. √3 का स्क्वायर क्या हो गया कैंसल. सो मेरे पास बेस आ गया 8√3/3. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੈਗਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨੀਚੇ ਬੇਸ. ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ cos ਥੀਟਾ. ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ cos ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲਓ. ਲਿਖੋ we know that cos theta is equal to
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 डिग्री है, बेस होएगा थोड़ा नीचे वाला, ਜਿਹੜਾ बेस है ਉਹ AC है और थोड़ा हाइपोटेन्यूज क्या आगा AB, दैट इज AC ओवर AB। cos 30 ਹੁੰਦਾਗਾ √3/2। AC ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ मैं ਕੱਢਣਾ है, AB मेरे पास 8 है ना, AB मेरे पास क्या गा 8 है और नहीं AB एक्चुअल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया ना, तो बेस क्या गा मेरा AC, हाइपोटेन्यूज क्या गा AB। सो AC ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ मैं AC ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿੱਤਾ भाई, उल्टा लिखता मैं 8 ओवर AB। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू AB इज इक्वल टू 8 इंटू 2। AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 16 ओवर √3। ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ AB का चला जाएगा नीचे। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 16 √3। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ थी 8 √3, 16 ओवर √3 आई 16 √3। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 8 √3, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ 8 √3, 8/√3, ਇਹ ਹੈਗੀ 16 √3। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਆਫ ਟ੍ਰੀ is equal to 16/√3 plus of 8 √3। LCM ਤਾਂ सेम ही आना √3, 16 plus 8 किन्ने हो गए 24। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ क्रॉस सॉरी रैशनलाइजेशन, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, ਤਾਂ 24 इंटू √3 क्या आ गया 24 √3। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, √3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੈਂਸਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ क्या आया 24 √3 over 3, 3 8s are 24, that is 8 √3 meter। Third, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें 2 स्लाइड्स लगानियां गया बच्चों वास्ते पार्क चो खेल सकन, जिहड़े 5 years तो घट है। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter for children less than 5 years, ਜਿਹੜੇ 5 years ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਗੀ 1.5 ਮੀਟਰ ਟਾਲ ਸਲਾਈਡ, 1.5 ਮੀਟਰ whose top is at a height of 1.5, मतलब ਉਹਦਾ ਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਹੋਵੇ and is inclined to angle 30 degree, ਤੇ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਪਰ ਹੋਵੇ। ओके, जिन्ना ज़्यादा घट एंगल होना उन्नी ज़्यादा मतलब इधर स्लाइड थोड़ी लंबी ठीक रहनी, मतलब ईजी रहनी, डेंजरस घट होनी। ठीक है, टू हैव अ स्लाइड देन वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, ਜਿਹੜੇ ज़्यादा बड़े बच्चे है ग्रेटर दैन 5 years, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਣੀ ਜੀ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ, मतलब यही चीज़ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਐਂਗਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, मतलब ਐਡਵੈਂਚਰ ज़्यादा होना, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ 60 ਡਿਗਰੀ, मतलब ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਦਾਂ ਐਂਗਲ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸਲੋਪ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ABC, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ DEF, ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ मतलब 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ ਜਿਹੜੇ 5 years ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਘੱਟ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मतलब ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 5 years ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਹਾਈਟ 3 ਮੀਟਰ ਰੱਖਤੀ, ਉੱਚੀ ਕਰਤੀ ਡਬਲ, ਔਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਤਾ 60 ਡਿਗਰੀ, मतलब ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਫਾਸਟ ਆਉਂਗੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ओके, पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, लेंथ क्या होनी स्लाइड की, पहले चल जाओ। फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 years, जेडे 5 years तो छोटे है, आ चीज कढ़नी परपेंडिकुलर दिता हुआ है, हाइपोटेन्यूज कढ़ना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है साइन थीटा। सो आप लगाओगे साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB
बेस कितना है 20, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है AC। साइन 30 ਹੁੰਦਾਗਾ 1/2, AB 1.5 है, AC में कढ़नी है, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, AC इंटू 1 AC 1.5 इंटू 2 3 मीटर आ जानी, मतलब ए वाली कितनी होनी 3 मीटर बच्चों वास्ते। फिर हुण आपां कड्ढना गा बड़े बच्चे वास्ते किद्दां होनी गी ए वाली, फॉर चिल्ड्रन ग्रेटर देन 5 ईयर्स, जिहड़े 5 ईयर्स तो बड़े है। इच आ जाओ, अगेन हाइपोटेन्यूज कढ़ना, परपेंडिकुलर दिता हुआ है, फिर साइन थीटा ही लगना, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है DE, हाइपोटेन्यूज कितना है DF। साइन 60 कितना आना गा मेरे पास √3, साइन 60 हुंदा √3/2, DE कितना गा 3 मीटर, DF कितना है मेरे पास कढ़ना गा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये जाएगा DF इंटू √3 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, सो √3 इंटू DF इज इक्वल टू 6, DF इज इक्वल टू 6/√3। रैशनलाइजेशन कर लो, 6√3, √3 इंटू √3 स्क्वायर, स्क्वायर ना स्क्वायर कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया 2√3। ओके, हुण करते हैं असी क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation on the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. देखो जब पूछ रहे हैं ना angle of elevation, angle of elevation इच क्या ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨਾ ਨੀਚੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਚ क्या दे ਰਿਹਾ, the angle of elevation of the top of tower, मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇਗੇ ਇਸ ਟੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾਗਾ 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ टावर है, ਇਹਦਾ फुट है, ਤੇ एंगल जितों ਤੁਹਾਡਾ बन रहा वो 30 मीटर दूर है, 30 मीटर क्या गा दूर है। ओके, ये हो गया थोड़ा C। फिर कहता फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कढ़ लो। ओके, एक बार फिर समझ लो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ टॉप ऑफ टावर पर, ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ एंगल ऑफ एलिवेशन ਐਦਾਂ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 30 डिग्री। फिर कहता कि इस पॉइंट तो ਜਿਹੜਾ फुट ऑफ टावर है, ਇਹ फुट ऑफ टावर ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ 30 मीटर। हाइट ऑफ टावर ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, बेस ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੈ, परपेंडिकुलर ਕੱਢਣਾ है tan थीटा। सो मैंने पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कितना का 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है मेरे पास BC। ओके, tan 30 कितना हुंदा मेरे पास, tan 30 हुंदा गा मेरे पास 1/√3। AB में कढ़ना है हाइट ऑफ टावर, BC कितना है 30 मीटर, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई भी ना करो, इन्हों इद्दां ऊपर चढ़ा दो, 30/√3 इज इक्वल टू AB, क्योंकि AB कढ़ना है। हुण रैशनलाइजेशन कर लो, 30/√3 इना मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/√3 इज इक्वल टू AB। ओके, इहदे नाल मल्टीप्लाई हो जाना 30√3, एक 2 टाइम्स है, √3 दा स्क्वायर इज इक्वल टू AB, कैंसल आउट, 30√3/3 कितना आ गया 10 इज इक्वल टू AB। सो थोड़े पास कितना आया 10√3 इज इक्वल टू AB। जो यूनिट जो भी दिते हुए लिख लो, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, मीटर है तो मीटर, यूनिट पक्का पायो क्योंकि कोई टीचर्स भैड़े होंगे मार्क्स कट। A kite is flying 60 meter above the ground। तो एक काइट है ਜਿਹੜਾ 60 मीटर above the ground उड़ रहा। ओके,
The string is attached to the kite is temporarily to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਈਟ ਦੀ ਸਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਟ 60 ਮੀਟਰ ਅਬਵ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਈਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ ਕਾਈਟ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦ ਸਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦ ਕਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਡੋਰੀ ਉਹ ਕਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨਤੀ ਮੈਂ ਸਟਰਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਰੀ। ਓਕੇ, then it is making angle 60 degree। एंगल क्या बना रहा 60 डिग्री। ओके, ये पॉइंट हो गया ए। तो कह रहे हैं कि ए कड्डो ए वाली स्लिंग, इतने मान लो कि कोई स्लैंग नहीं है, कुछ गट गुट कुछ नहीं पई भी, तो मैंने सिर्फ ए पोर्शन कट के दो। सिंपली थोनों परपेंडिकुलर दिता वा, हाईपोटेन्यूज कड्डण नूं कहा वा। परपेंडिकुलर ते हाईपोटेन्यूज दो ही रिलेशन होंदे, साइन या कोसेक। सो मैं लिखूंगी वी नो दैट in right angle triangle ABC tan theta, no हम लेंगे इतने लेना से sin theta। sin theta is perpendicular over hypotenuse। sin कितना है 60 डिग्री। सो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हैगा AB, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास AC। ओके, साइन 60 जो थोड़ा याद होवे कितना होंदागा √3/2। ए बी कितना है 60, ए सी में कटना है, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू ए सी इज दैट 60 इंटू 2। ओके, ए सी अपनी जगह 60 इंटू 2 होंगे 120 ओवर √3, इतने मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके हो जाने डिवाइड, फिर रैशनलाइजेशन भी नाल ही कर देंगे हैं ताकि ईजी हो जाए। 120 इंटू √3 120 √3, √3 इंटू √3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाना। सो मेरे पास क्या आ गया 120 √3 ओवर 3, 3 4 12, ओके 40 √3। सो ए जी चीज़ है थोड़ी स्लैंग है या ए डोर है, ये कितनी की 40 √3 सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि ये मीटर है ना, ये भी मीटर चाहिए। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। तो क्या दे क्या रखा है आपको, एक क्या है 1.5 मीटर टॉल बॉय है, मीन्स उस बच्चे की हाइट क्या है लड़के की 1.5 मीटर। मान लो ये क्या हो गया ए बी इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। वो ना खड़ा हुआ है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक टॉल बिल्डिंग से, ये होगी आपकी बिल्डिंग। तो यहाँ पे खड़ा हुआ है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से टॉल बिल्डिंग पे, बिल्डिंग को मान लो आप सी टी। ये हो गया बॉय जो 1.5 मीटर है, और ये क्या होगी आपकी बिल्डिंग जो क्या है सी टी। ओके, फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन होता है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, जैसे आपकी आईज है यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखोगे तो होगा एलिवेशन। अगर आप ऐसे किसी ऊपर से मतलब नीचे की तरफ देख रहे हो, मतलब आपके पास ये आपका हेड है, अगर आप तो अपना हेड उठा के ऊपर की तरफ देख रहे हो तो बनता है एलिवेशन। अगर आप हेड डाउन करके आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से उसके टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो पहले मतलब यहाँ पे उसका जो एंगल था वो कितना बन रहा था 30 डिग्री। ओके, उसके बाद थोड़ा वो आगे गया होगा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यहाँ से चल के मीन्स मान लो यहाँ पे गया वो, यहाँ पे चल के, तो जब वो यहाँ पे चल के यहाँ तक आया, सपोज यहाँ पे आ गया, तो उसका एंगल क्या बन गया 60 डिग्री। ऐसे उसका एंगल बन गया 60 डिग्री। ओके, मीन्स पहले जब वो यहाँ पे था तो उसका एंगल 30 डिग्री था, फिर वो चल के यहाँ पे आ गया तो एंगल क्या कर गया 60 डिग्री इंक्रीज कर गया, तो इस ढंग से हो गया। ऐसे ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये उसके पैर है, तो अगर यहाँ से वो यहाँ तक गया मतलब इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा, तो
मुझे ये डिस्टेंस पता करना है कि वो कितना चल के गया, यहाँ से यहाँ तक कितना चल के गया, मुझे ये पता करना है। तो ये हो गया ए बी बॉय, सी डी होगी बिल्डिंग। तो इस पॉइंट को मान लेती हूँ मैं ई, इस पॉइंट को क्या मान लेती हूँ मैं एफ। देखो ये बॉय की हाइट है 1.5, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। ओके, अगर ये बिल्डिंग है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपकी हाइट अगर 1.5 है तो इतनी तो ये भी 1.5 भी होगी। तो बिल्डिंग तो मेरे को टोटल दे रखी है कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल बिल्डिंग है वो 30 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके 30 है, और जो लड़का है वो 1.5 हो गया। तो जो इतनी चीज़ है, ये वाली जो है, ये हाइट कितनी होगी, ये होगी 30 माइनस 1.5, दैट इज़ 28.5 मीटर। देखो कैसे करते हैं, जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, एफ डी के, इतना पोर्शन। ओके, तो ये कितना आ गया 1.5 मीटर। ओके, अब उसके बाद पूरा ए डी, जो पूरी बिल्डिंग है, ऐसे पूरी बिल्डिंग है ना ए डी, ये ऐसे ए डी, ये कितनी है दे रखी मेरे पास 30 मीटर। ओके, अब 30 में से इतनी तो एफ डी आपकी कितनी होगी 1.5 मीटर। मुझे तो सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए, ए एफ ही चाहिए क्वेश्चन के लिए। तो ए एफ कितना होगा 30 माइनस 1.5 मीटर, दैट इज़ 28.5 मीटर। ओके, बस ये वाली चीज़ थी जो सॉल्व करनी है, बाकी सारा इजी है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले ये 30 वाले ट्रायंगल में जाते हैं। 30, अब देखो 30 यहाँ से है, ये पूरा जाएगा यहाँ से इतना, ये पूरी लाइन जाएगी, ये वाली और ये वाला। 30 ऐसे बन रहा है ना ये वाली ट्रायंगल, तो मैं लूँगी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी एफ ए, ये वाले जो ट्रायंगल है ना मेरे पास। अब देखो मैं बना रही हूँ ट्रायंगल बनाते हैं ट्रायंगल सी एफ ए। अब देखो जो सी एफ है ये है 28.5, मेरे को दे रखा है ना 28.5 मीटर सी एफ, और ए एफ मुझे निकालना है। ये लड़का और उस बिल्डिंग के बीच में टोटल डिस्टेंस है कितना है, ये लड़का है, यहाँ पे बिल्डिंग में कितना डिस्टेंस है वो मैंने निकालना है, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। सो मैं tan के साथ निकालूंगी, मैं क्या लिखूंगी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी एफ ओवर ए एफ। tan 30 कितना होता है 1/√3, सी एफ दैट इज 28.5 ओवर ए एफ। ए एफ जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये जाएगा उसके पास, दैट इज़ 28.5√3। ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं इस ट्रायंगल की तरफ। देखो लड़का था यहाँ पे, बिल्डिंग थी यहाँ पे, मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, लड़का और बिल्डिंग में कितना डिस्टेंस है वो मैंने अभी निकाला 28.5√3। अब जो दूसरी ट्रायंगल है वो 60 डिग्री है, ये वाली 60 ऐसे बन रही है, मीन्स मैं ये वाली ट्रायंगल यूज़ करूँगी। अब ये वाली, इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये कितना है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है बिल्डिंग का वो डिस्टेंस 28.5√3 है। नेक्स्ट के साथ मैं ये निकालूंगी यहाँ का डिस्टेंस, जो टोटल में से इतना माइनस करूँगी तो मेरे पास ये आएगा, ये वाला पोर्शन, तभी मेरे को पता लगेगा कि लड़का कितना चल के गया। चलो अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए ई एफ, चलते हैं इन ट्रायंगल ए ई एफ। ड्रॉ करते हैं ए ई एफ को हम लोग ऐसे, एक्चुअली ए ई एफ नहीं है, सी ई एफ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सी ई एफ है ऐसे। तो ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका ई, और ये हो गया आपका एफ। इसमें एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो फिर से मैंने गलत कर दिया, एक्चुअली ये मेरा ई है और ये मेरा एफ है। ओके,
ये है 28.5 मीटर। अब इसको निकालते हैं। अगेन मेरे पास परपेंडिकुलर है, मुझे बेस निकालना है, फिर मैं tan थीटा यूज़ करूँगी दोबारा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? FC। बेस कितना है? EF। tan 60 क्या होता है? √3। FC क्या होता है? 28.5। EF अपनी जगह। अब EF ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि मुझे EF निकालना है। तो ये कितना आ गया? 28.5 ओवर √3। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। देखो ऐसे AF है, ये वाला AF, ये मैंने निकाला 28.5 √3 और मैंने अभी निकाला EF यहाँ से E। ये वाला पोर्शन कितना आया? 28.5 ओवर √3। अब पूरी चॉकलेट मान लो ये है, इसमें से अगर मैं इतनी माइनस कर दूँ तो मुझे ये आएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 28.5 √3 और इतना आया 28.5 √3। इसमें से माइनस कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। चलो करते हैं। आपके पास है, देखो मैं क्या करूँगी, कैलकुलेट, मुझे AE निकालनी है। तो AE मैं कैसे निकालूंगी? मैं पूरी AF में से माइनस कर दूंगी EF। AE तो है, तो AF आपने निकाला था 28.5 √3। 28.5 √3 था, तो ये लिखा मैंने 28.5 √3 माइनस ऑफ EF 28.5 ओवर √3। अब आप लो LCM आया √3, सो ये जाएगा 28.5 √3। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और LCM में इसके पास √3 नहीं है तो मैं इसे √3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, माइनस मेरा न्यूमरेटर एज इट इज़ और इसके पास √3 है, सो नहीं करूँगी। अब देखो 28.5 आप एज इट इज़ लिख दो, √3 इंटू √3 क्या आएगा मेरे पास? 3 माइनस 28.5 ओवर √3। अब देखो अगर मैं इसको एक फंक्शन कंसीडर करूँ, इसको दूसरा फंक्शन कंसीडर करूँ, तो ये तो कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या बचा? 3। तो मैं लिख सकती हूँ 28.5 इनसाइड 3 माइनस 1। देखो इसको मैंने कॉमन ले लिया, इससे कॉमन मैंने छीना तो यहाँ पे बचा 3, इससे कॉमन 28.5 ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं लिखूँगी 1 ओवर √3। तो ये क्या आएगा? 28.5 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 √3। तो अब इसको कर लेते हैं हम लोग प्रोसीड। तो देखते हैं कैसे करना है। 28.5 को अगर आप माइनस करोगे 1 से तो आपके पास आएगा 2। चलो करते हैं। तो मेरे पास क्या आया? 28.5, 3 में से 1 गए 2, ओके, ओवर √3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 का क्या होते हैं? 10, कैरी जाएगा यहाँ पे, 2 8 द 16 17, कैरी किया, 2 2 द 4 5 57 ओवर √3। ये आ गया एक तरह से 57 ओवर √3, बट ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि नीचे अंडर रूट है, तो मैं इसको उससे एक्यूरेट कर लेती हूँ। 57 √3 इंटू अबव √3 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इससे कर दो, 57 √3, इसको लिख लो अंडर √3 2 टाइम्स है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल। सो मेरे पास क्या आया? 57 √3 ओवर 3। मुझे पता है 3 2 द 6, नो 3 1 द 3, 2 3 9 द 27, तो ये क्या आ गया? 19 √3 मीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन। 7th पॉइंट, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. पहला तो होगी ए थोड़ी बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग AB, इधर ऊपर खड़ा कर लो टावर, ए हो गया टावर C। ओके, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of the tower, मतलब बॉटम ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬॉटम, ਇਹ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਵਰ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਬਵ ਹੈ ਟੌਪ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਾਟਮ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਟਮ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 20 ਮੀਟਰ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਟਾਵਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਗਈ h ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ d। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ABD 'ਚ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD h ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ABD 45 डिग्री 20 डिग्री ये चीज कटो। सो मेरे पास क्या आगा tan थीटा क्या होंदागा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। tan कितना दिता वा इथे 45 परपेंडिकुलर क्या आगा AB हाइपोटेन सॉरी बेस आएगा आई एम सॉरी बेस क्या आगा BD। tan 45 होंदा 1 AB कितना आ गया 20 BD में कटना है। सो BD क्या इथे 1 इंटू BD इज इक्वल टू 20। सो BD कितनी आ गई मेरे पास 20 मतलब एच इज 20 आ गई मीटर। हुण चलो बड़ी ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD आएगी मेरे पास ऐदा CBD। ये चीज क्या आ गई 60 डिग्री एच इज कितनी आनी 20 प्लस एच ये चीज कटो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC ओवर BD। ओके tan 60 कितना होंदागा √3 BC कितना गा 20 प्लस H BD कितना गा ठीक है। मतलब कि है ना tan 60 tan थीटा है परपेंडिकुलर कितना गा BC BD कितना गा है नहीं गा 20 प्लस H क्यों लिया क्योंकि इथों B तो C है दा पूरा 60 डिग्री बनता पिया B तो C ऐदा जाना 20 प्लस H। हुण BD मैं हुणे कट के हटी थी BD कितना था मेरे पास 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 प्लस H। इनू इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि H पॉजिटिव है √3 इंटू 20 माइनस हो गए 20। हुण देखो दोनों पास 20 है टर्म 20 कॉमन लो अंदर क्या बचा इतने आ गया √3 इसकी जगह क्या आ गया -1 इज इक्वल टू H। सो ये आ गया क्वेश्चन।